یہ اب ہم ناول کا پارٹ نمبر 54 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے خاص سبق ہمیں سے آفس سے گھر تک کا فاصلہ طے کر پا رہی تھی۔ آج وہ لنچ ٹائم میں ہی آفس سے نکل آیا تھا بنا آصف کو بتائے، جو کہ لنچ ٹائم میں کھانا کھانے گیا ہوا تھا۔ عادی کا دل بےحد عجیب سا ہو رہا تھا۔ جب سے وہ ملتان سے لوٹا تھا اس کی یہی حالت تھی، کسی کام میں کسی جگہ پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ ان دنوں تو ماما بھی اسلام آباد میں اپنی بہن کے پاس گئی ہوئی تھی۔ اس کی بہن سالوں بعد دبئی سے پاکستان واپس آئی تھی، جن سے ملنے ماما کل سے اسلام آباد گئی ہوئی تھی۔ اس کا دل اداس ہو رہا تھا، اس لیے وہ گھر جا رہا تھا تاکہ کچھ دیر اپنے بیڈ روم میں اپنی اینجل کے ساتھ وقت گزار سکے۔ اس کے علاوہ اسے اپنی چھوٹی جل پری کی یاد بھی بہت ہی شدت سے آ رہی تھی۔ پہلے اس کا بے چین دل اس کی یادوں سے ہی بہل جاتا تھا، مگر جب سے وہ ملتان سے واپس آیا تھا اس کی کیفیت اتنی عجیب ہو رہی تھی کہ اب صرف یادوں سے اس کا گزارا ناممکن ہو رہا تھا۔ اب اس کا دل اپنی اینجل کے قرب کے لیے ہمک رہا تھا۔ کار میں بجتا ہوا یہ سانگ اس کے دل کا درد لفظوں میں بیان کر رہا تھا۔ گانے کے بولوں میں پوری طرح سے ڈوبا ہوا تھا۔ جب سگنل ریڈ ہوتے ہی اس نے جھٹکے سے بریک لگا کر کار سگنل پر روکے تھے، تبھی اس کا فون الرٹ بجنے لگا تھا۔ ٹوڈے از ڈیڈس برتھ ڈے۔ اس نے چونک اپنا فون اٹھایا تھا۔ آج جون کی 6 تاریخ تھی۔ آج اس کے ڈیڈ کی برتھ ڈے تھی، یعنی آج اسے اپنی لٹل اینجل کو دیکھے ہوئے پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ ڈیڈ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر کے ہی تو وہ ملک سے باہر گیا تھا، جب اس کے پیچھے اس کی مہروسہ ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا، وہ اپنی زندگی کو اس دن آخری بار دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد اس کی صورت تک دیکھنے کو ترسے گا۔ سوچوں میں گم وہ سگنل کھلتے کار سٹارٹ کر رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر سامنے سے ہی پھولوں کی شاپا پر تھی۔ وہ گاڑی شاپ کے سامنے جا کر ایک سائے پر روکتا ہوا نیچے اتر آیا تھا۔ شاپ میں داخل ہوकर اس نے سامنے کھڑے لڑکے کو اپنا آرڈر لکھوایا تھا، ساتھ ہی اپنا ایڈریس نوٹ کرواتے 1 گھنٹے کے اندر اپنے مطلوبہ پتے پر پہنچ کر آرڈر پورا کرنے کی تاکید بھی کر دی تھی۔ پھر وہ شاپ سے باہر نکل کر تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے آتے ہوئے کسی شخص سے بھٹنا سے ٹکرا گیا تھا۔ اوہ سوری، آپ کو لگی تو نہیں کہیں؟ وہ جھک کر سر پر گرے بندے کو اٹھا ہی رہا تھا، اس بندے کی بھی نظر سامنے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ عادل افندی پر پڑی تھی۔ وہ خوشگوار حیرت سے سامنے کھڑے ہوئے عادل کو دیکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم سر جی، پہچانا مجھے؟ میں سراج ہوں، افندی گروپ آف انڈسٹریز میں سیکورٹی گارڈ کی جاب کرتا تھا۔ وہ شخص سامنے کھڑے عادل افندی کو دیکھ کر مرغوب ہو گیا تھا، جو پہلے سے زیادہ وجیہ اور خوبصورت لگنے لگا تھا۔ ہاں اچھا، سوری بٹ مجھے یاد نہیں رہا۔ خیر کیسے ہیں آپ سراج؟ کہاں جاب کر رہے ہیں؟ عادل نے مروتن پوچھا۔ سر، افندی گروپ آف انڈسٹریز سے نکلنے کے بعد تو آج تک کہیں بھی ڈنگ کی جاب نہیں مل پائی۔ ادھر ادھر جتیاں چٹہاتا پھر رہا ہوں، 6 مہینے کہیں تو 6 مہینے کہیں، پرماننٹ جاب کہیں بھی نہیں مل رہی۔ وہ آزودگی سے بولا تھا۔ لیکن آپ نے ہمارے یہاں سے جاب کیوں چھوڑ دی؟ کوئی مسئلہ تھا تو مجھے یہاں ڈیڈ کو بتا سکتے تھے۔ عادل نے اپنی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی، مگر سامنے کھڑی اس بندے کی بات سننا بھی اس کا اخلاقی فرض تھا، کیونکہ وہ ان کا ملازم رہ چکا تھا۔ سر جی، جاب میں نے کہاں چھوڑی، بلکہ آپ کے اور اس لڑکی کی وجہ سے مجھے اس جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ سراج کی بات سن کر عادل حیران رہ گیا تھا۔ میری اور لڑکی کی وجہ سے؟ کون سی لڑکی؟ عادل حیرت سے پوچھا۔ سر، 2 سال پہلے جن دنوں میں آپ کی کمپنی میں جام کرتا تھا نا، تو ایک بیچاری چھوٹی سی لڑکی آپ کو پوچھتی ہوئی آئی تھی، بس اس کی وجہ سے مجھے یہ جاب چھین لے گئی۔ سراج نے منہ لٹکائے ہوئے کہا تھا، جس پر عادل بے چین ہو اٹھا۔ کون سی چھوٹی سی لڑکی مجھے پوچھنے آئی تھی؟ مجھے پوری بات بتاؤ سراج۔ عادل نے سراج کو کان سے تھام کر بےتابی سے پوچھا، جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے مزید بولا۔ سر جی، میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ وہ لڑکی آج بھی مجھے یاد ہے۔ اپنی جاب کے آخری دن میں شام کے وقت گیٹ پر ڈیوٹی دے رہا تھا کہ سامنے روڈ سائڈ سے ایک لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور میرے پیروں کے پاس آ کر گری۔ میں ایک دم ڈر کر اچھل ہی پڑا، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اٹھایا اور حیران رہ گیا۔ یقین کریں سر جی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ جیسی ہالی ووڈ کی فلموں میں ہیروئن ہوتی ہے نا، بالکل ویسی تھی۔ ایک دم انگریزوں جیسی تھی وہ، نیلی آنکھیں، سفید چٹا رنگ، گولڈن بال، دکھنے میں بھی کافی چھوٹی لگ رہی تھی، لیکن بیچاری بہت بری حالت میں تھی۔ اس کے پیر سے کافی خون بہہ رہا تھا اور سر پر بھی چوٹ لگی تھی، پورا منہ سوج رہا تھا، گالوں پر انگلیوں کے نشان۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے بہت ہی بری طرح سے پیٹا گیا ہو، اور وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ اتنی بری طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ تو وہ زور زور سے روتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا عادل آفس آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، سر تو کئی دن سے آفس نہیں آ رہے، مگر تم کون ہو اور انہیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو وہ گھبرا کر پیچھے دیکھتی ہوئی بولی کہ میری بات دھیان سے سنو، عادل جس دن بھی یہاں پر آئے انہیں کہنا کہ مجھے بچا لے، ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گی، اور یہ بھی کہا کہ میں موقع ملتے ہی انہیں کال کر کے سب سچ بتاؤں گی، اور
बस इतना ही बोल पाई थी कि पीछे रोड से तेजी से एक गाड़ी बिल्कुल हमारे करीब आकर रुकी, जिससे 2 आदमी बाहर निकले। उन लोगों ने उसे घसीटकर गाड़ी में डाला और फिर अपने साथ ले गया। वह मजीद भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, शायद अपना तारुफ भी देती सर जी, मगर इन लोगों ने उसे मौका नहीं दिया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सीधा भागता हुआ शहरिया सर के पास गया, मगर वो ऑफिस में नहीं थे। मैडम अफंदी उनकी सीट पर मौजूद थी। मैंने जल्दी जल्दी उन्हें उस लड़की का पूरा हुलिया बताया और मजीद ये कि 2 लोग एक लड़की को हमारे ऑफिस के सामने से गाड़ी में डालकर अगवा करके ले गए हैं। साथ ये भी बताया कि वो लड़की आधा साल के बारे में पूछ रही थी, शायद वो आप लोगों की जानने वाली है। वो आदर साहब से मिलना चाहती थी, इसलिए आप पुलिस को कॉल करें जल्दी। मैं उन्हें आगे भी बताना चाहता था, लेकिन मुझे हैरत तब हुई सर जी, जब मैडम ने आधी बात सुनकर ही मुझे बीच में रोक दिया और अपने बैग से कुछ पैसे निकालकर मेरे सामने रखते हुए मुझसे कहा कि यह रकम तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए काफी है। पुलिस तो दूर, ये बात तुम बाहर जाकर किसी और से भी नहीं कहोगे। अगर ये पैसे कम लग रहे हैं तो और ले लो, मगर कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। दोबारा इस कंपनी के आसपास भी दिखाई दिए या किसी के सामने इस बारे में भी अपना मुंह खोला तो किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डलवा दूंगी, जहां जिंदगी भर सड़ते रहोगे। इसलिए आज के बाद दोबारा अफंदी इंडस्ट्री की तरफ आंख उठाकर भी ना देखना। सर जी, हम गरीब लोग हैं, दिन रात 2 वक्त की रोटी के लिए मुशक्कत करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों से पंगा मोल नहीं ले सकते। तभी मैं मैडम की धमकी से डर गया और चुपचाप काम छोड़कर चला गया। सिराज अपनी तवील बात कहकर खामोश हो गया था, जबकि सामने खड़े आदल अफंदी की जात जलजलों की जात में आ गए थे। वो लड़की उसकी मेहरोसा थी, उसकी जिंदगी, उसकी बीवी, जिसके लिए वो जी रहा था, जिससे आज तक उसका दिल कभी भी मुजरम नहीं मान सका था। उसकी मेहरोसा के साथ ये सब सुलूक किसने किया? कौन थे आखिर वो लोग जो मेहरोसा को उठाकर लेकर गए थे? उसकी माँ ने मेहरोसा की मदद क्यों नहीं की? सिराज को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे क्यों दिए? उसकी मासूम एंजल से उसकी माँ की क्या दुश्मनी थी? क्यों वो अपने ही बेटे की तरफ का तमाशा खामोशी से देख रहे थे? क्यों उन्होंने आज तक इस हकीकत से उसे छुपा कर रखा? क्यों वो ये सब जानते हुए भी मेरोसा को बुरा भला कहती रहती? और कौन थी वो जो उसकी लिटिल एंजल को जान से मार देना चाहते थे? एक बात पूछूं आपसे सर जी? सिराज अपने सामने खड़े ताकतवर जामद आदि से झिझकते हुए पूछने लगा, जबकि आदि जो हैरत की ज्यादती से कंग हो गया था, बेतासर आंखों से सिराज को देखने लगा। सर, क्या आप ऐसी किसी लड़की को जानते हैं? अगर जानते हैं उस लड़की की खोज लगाएं। क्या पता अभी वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो और उसे आपकी मदद की जरूरत हो। बेहद काबिल रहम थी वो। बेचारी के साथ न जाने किन जालिमों ने इतना वहशाना सलूक किया था। उसे देख कर लग रहा था जैसे उस पर बुरी तरह से तशद्दुद किया गया हो। वो मेरे लिए अनजान थी, फिर भी मुझे उस पर तरस आ रहा था आज, जबकि आपकी तो वो पहचान वाली थी। सर जी, आप मैडम जिसके बारे में पूछे उस लड़की को पहचानती थे, लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा सर। और हाँ, आपने सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। आप एक बार उसको सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे ना तो आप इसके हाल देखकर दुखी हो जाएंगे। पता नहीं कहाँ होगी अब। सिराज अफसुदगी से बोलता आदि के तारीख पड़ते चेहरे को देखने लगा था, जो सीसीटीवी की बात सुनकर चौंक गया था। कंपनी के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा था। सीसीटीवी कैमरा? जरेला बड़बड़ाते वह फौरन मुड़ा था, फिर कुछ याद आने पर दोबारा पलटा और सिराज को अपना कार्ड देकर सुबह ऑफिस आने से पहले कॉल करने के लिए कहा था। फिर खामोशी से जाकर अपनी कार में बैठ गया था। सर में उठती हुई टीसों को दबाते वह बामुश्किल ड्राइव करता ऑफिस जा रहा था। उसे जल्द अज जल्द दोबारा ऑफिस पहुंचकर 2 साल पहले की इसी महीने की वो सीसीटीवी फुटेज देखनी थी। उस सारे मामले का असर नो जायजा लेना था। अगर वो लड़की वाकई उसकी मेरोसा थी तो अब अपनी अंजल को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा, मगर कहीं से भी ढूंढकर उसे वापस अपनी जिंदगी में दोबारा लेकर आएगा। अब उसे वो वापस कहीं नहीं जाने देगा। इस काम की शुरुआत उसे आज से ही करनी थी। उसका दिल कह रहा था कि उसकी अंजल की गुमशुदगी का सिरा उसके अपने घर और ऑफिस से जुड़ा हुआ था। अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर सनम तेज से पलटी थी, लेकिन अपने पीछे खड़े इस शैतान को देखते वो अपनी जगह पर मुंजमद हो गई थी। जबकि बेराम करीमी रिलैक्स सा मुस्कुराते हुए उसके करीब आ रहा था। उसे पता था कि मैरिज हॉल में निकाह के बाद डिनर शुरू हो चुका है और अब मुश्किल से ही उसकी तरफ कोई आएगा। इस दौरान वो अपना काम करके भी चला जाएगा, क्योंकि आज वो इतना बड़ा रिस्क लेकर अपने डर को बरतरफ रखते हुए ऐसी बीरबल जगह पर आया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉल के लिए। वो कब से यहाँ पर इस गंदी दुनिया और गंदे लोगों से छुपा बैठा अपनी डाल को मैसेजेस कर रहा था कि वो यहाँ आ जाए, वरना मजबूरन उसने अपनी डाल को अपने साथ घर लेकर जाना पड़े, ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के उसे जी बार का दे सके। उसकी डाल कितनी मासूम थी जो उसकी बात मानकर फौरन आ गई थी, जिस पर वो खुश हो गया था। लेकिन ये क्या, उसकी डाल इतने गंदे लोगों की तरह खुद को इतना गंदा कर आई थी। ये कैसी सजी थी वो? बेराम को उसकी ये गंदी सी सजावट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो जानता था कि उसकी डाल को
तैयार होना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए अब उसे तैयार करेगा। वो अपनी डॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाएगा। हेलो माय डॉल, कितना कहा मैंने तुमसे कि इन गंदे लोगों के बीच में, इस भीड़ भाड़ में मत आना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। कितने मैसेजेस किए, कितनी कॉल्स की, मगर तुमने मेरी एक कॉल भी पिक नहीं की, एक मैसेज का जवाब नहीं दिया। मजबूरन मुझे तुमसे मिलने खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। बाकी सारे मैसेजेस तुमने अनदेखे कर दिए, सिर्फ एक इस मैसेज के सिवा। ऐसा क्यों किया माय डॉल? क्या फिर से मेरे साथ जाने से डर गए तुम? वह धीरे धीरे उसके पास आता और बोल रहा था, जबकि सनम नफी में साह हिलाते हुए पीछे होते जा रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन सा मैसेज? मैंने कोई मैसेज नहीं पढ़ा। तुम कहाँ आई हो? देखो मुझे छोड़ दो बेराम, जाने दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज मुझे जाने दो। सनम कपकपाती हुई आवाज में बोलती पीछे दीवार से जा लगी थी, मगर बेराम दीवानगी से हंसता हुआ अपनी जेब से छोटा सा महसूस ब्लेड निकालता सनम के करीब आ गया था। उसके हाथ में छोटा सा ऑपरेशन ब्लेड देखकर सनम की आंखें दहशत से फट गई थी। इस तरह के छोटे मोटे खिलौने हर वक्त उसकी पॉकेट्स में पड़े रहते थे, यानी इतने वक्त बाद भी बेराम क्रीमी नॉर्मल नहीं हुआ था। माय डॉल, देखो ना ये तुम्हारे खूबसूरत हाथ आस्तीनों से झलकते हुए कितने गंदे लग रहे हैं। रुको मैं इन्हें खूबसूरत बना देता हूँ। मैं तुम्हें आज अच्छी तरह सजाऊंगा। ये खूबसूरत चेहरा इस ब्लेड की मदद से मजीद खूबसूरत बना दूंगा। और ये मोमी उंगलियों से सजे हुए हाथ, ये हाथ बिना उंगलियों के कितने प्यारे लगेंगे ना। आओ मैं तुम्हें त्याग करूं अब। कहते हुए उसने सनम की आस्तीन से नजर आते बाजूबा कट लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था कि बुरी तरह से लजरती हुई सनम तेजी से दिखा देते दरवाजे की तरफ आगे थे। बेराम इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार नहीं था, तभी वो सीधा जाकर फर्श पर गिरा था। तेजी से बैठ जाने के लिए सनम ने हैंडल पर हाथ रखकर लॉक खोला ही था कि बेराम ने बड़क रफ्तार से उसका हाथ चपड़ कर पकड़ा और अपनी तरफ खींच दिया। फिर दीवानगी से चीखता हुआ वो जैसे पागल हो गया था। पे दर पे कई थप्पड़ सनम के मुंह पर मारते हुए बेराम ने उसे बाईं तरफ लाइन से बने वॉशरूम बेसन की स्लैब पर फेंका था, जिस पर सनम मुंह के बल गिरी और जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगे थे। भारी मर्दाना थप्पड़ ने उसका चेहरा गुमा करा दिया था। उसके होंठों और नाक से खून बहने लगा था, जबकि फूल सा कोमल चेहरा जालमाना तशद्दुद से सुरख अंगारा हो गया था। नफासा से बने हुए हाल खुलकर नफासे से बने हुए बाल खुलकर पूरी पूछ पर फैल गए थे। बेराम दोबारा से ब्लेड लेकर उसके पास आया था। नहीं बेराम, प्लीज प्लीज बेराम बचाओ, somebody help me प्लीज। बेराम ने सनम को बालों से पकड़ते हुए खींच कर खड़ा किया था। तभी धर्म से दरवाजा खुलने की आवाज पर सनम के साथ बेराम ने भी पलट कर दरवाजे की तरफ देखा था। जहाँ सामने दरवाजे पर खड़े रकीम को देखकर सनम तेजी से बेराम को दिखा देती रकीम की तरफ भागी थी, उसके गले लग गए थे। रकीम मुझे बचा लो, रकीम इस शैतान से मुझे बचा लो प्लीज, वरना ये मुझे मार डालेगा। ये शख्स पागल है, नफसियाती मरीज है, ये मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा ले। दोनों हाथों से रकीब के कोट को साथी से दबोचे हुए उसके गले लगकर सुहारा को तार होने लगे थे। डर व खौफ से वो सूखे पत्ते की तरह लजर रही थी। इस वक्त वो भूल गई थी कि रकीब भी मर्द है, जिस पर कुछ दिन पहले ही वो अपनी नापसंदीदगी बुरी तरह से जता चुकी थी, जिसके सिर्फ कुछ दिन पहले खुद को छूने पर वो बुरी तरह से मुतवहिश हो गई थी। आज खुद उसके गले लगी उसकी पनाहों में खुद को महफूज तस्वर कर थी। इस वक्त रकीम शाह की जात उसे अपने लिए बहुत जाय पनाह महसूस हो थे, जबकि रकीम शशिदर सा अपने गले लगी सनम के रिएक्शन पर जैसे बोलना भूल गया था। उसकी जिंदगी, उसकी सिंड्रेला उसके गले लगी थी। उसके पनाहों में छुपकर सामने खड़े शैतान से बचना चाहती थी। उसने तो लम्हों में ही रकीम शाह की जात को मौत पर काट दिया था। रकीम ने अपने बाजू उसके तरफ पे फैलाते हुए उसे अपनी जात का मान बख्शा था। खुदा का लाख लाख शुक्र था कि वो सही वक्त पर अपने कपड़े क्लीन करने वॉशरूम में आया था। जहाँ अपने कपड़े साफ करके वो बाहर जा ही रहा था कि उसे एक तेज नसवानी चीख की आवाज सुनी थी। दोनों वॉशरूम्स की बीच की दीवार कामन थी और ऊपर से खुली हुई थी, जिसकी वजह से दोनों तरफ लेडीज वॉशरूम से आती हुई दर्द भरी चीख की आवाज को वो कुछ लम्हों में पहचान गया था। उसकी सिंड्रेला की आवाज थी। क्या हुआ था उसकी सनम को? वो सनम की चीख सुनकर शॉक सा खड़ा रह गया था कि एक बार फिर से उसकी बुलंद होती चीखें और रोती भी मदद को पुकारती आवाज को सुनकर वो बुरी तरह से परेशान होता। तीर की तेजी से एक दरवाजे से निकलकर दूसरा दरवाजा झटके से खोलता इस लेडीज वॉशरूम में चलाया था। सनम उसके गले लगी बुरी तरह से रो रहे थे। तभी बेराम गुस्से से खोलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने रकीम के गले लगी सनम की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि रकीम ने गुस्से से उसके पेड़ पर लात मारते सनम को अपने पीछे छुपाया था और खुद आगे बढ़कर बेराम का गला गिरबान पकड़ते जोरदार पंच उसके मुंह पर दे मारा था। फिर पे दर पे कई मुक्के बेराम के चेबा मारते हुए उसे पीछे धकेलकर रकीम तो बड़ा सनम की तरफ बढ़ा था, मगर अपने पीछे आहट महसूस होते ही वो तेजी से दाएं तरफ झुका था, जिस पर रकीम पर हमला आवर होते बेराम का निशाना चौक गया था। रकीम ने सराय से पलट कर देखा था। बेराम ने अपने हाथ में अस्पाइल नाइफ हंजर की तरह पकड़ी थी। रकीम को दोबारा पलट कर अपनी तरफ बढ़ता देखकर बेराम ने फिर से उस पर हमला करना चाहा। तभी रकीब ने
खुद पर हमला करते बेराम का हाथ पकड़कर उसे पीछे दिखा देकर नीचे गिरा दिया था। उसके हाथ से नाइफ छीन ली थी। फिर वो पलट कर सनम की तरफ आया था और तभी रकीम की नजर सनम के सुर पड़ते चेहरे पर पड़ती। सूजा हुआ चेहरा और दोनों गालों पर थप्पड़ों के निशान, नाक और होंठों से बहता हुआ खून। कुछ दिन पहले तस्वीरों में यही हाल वो सफीन का भी दे चुका था। आज उसकी सनम भी इसी हाल में उसके सामने खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर रकीम का खुद पर से जब्त खत्म हो गया था। इसने हाथ उठाया आपा सनम। वो गुस्से से बिछी हुई आवाज में सनम से पूछने लगा था, रकीम प्लीज चले यहाँ से, ये नफसियाती है, इंसान के रूप में शैतान, उसने मुझे बहुत ही टॉर्चर किया, ये आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, चलें प्लीज। सनम उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़कर रकीम को लिए वहां से जाने लगी थी। वो दोनों की बेराम की तरफ पीठ मोड़े खड़ा था। उसने मारा है आपको सनम? इस बार रकीम गुस्से से चीख पड़ा था। उसके गुस्से से सुर पड़ती हुई आंखें देखकर सनम बुरी तरह से सहम गए थे। हाँ, मैंने अपनी डॉल को सजाया है, मैं ऐसे ही उसको सजा हुआ देखना चाहता हूँ। मुझे इस रूम में ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, मगर अब ये तुम जैसे गंदे लोगों के बीच रहकर तुम्हारे जैसी हो गई है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। माय डॉल, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता था और तुम इन गंदे लोगों के साथ रहकर इन जैसी हो गई हो। वेरी बैड। हाँ, बेराम बोलता हुआ उठा था और रकीब जो कि उसकी आवाज सुनकर पलटा था। बेराम ने तेजी से आगे बढ़कर रकीम का गिरबान पकड़ लिया, उसके पैर में घुटना मारकर घुमाते हुए जोर से उसका सर सामने दीवार पर दे मारा था, जबकि सनम को वो पहले ही खींचकर दाएं तरफ काट चुका था। रकीम की तरह उसने सनम को बालों से खींचते हुए उसका सर पूरी कुव्वत से वॉश बेसिन के ऊपर लगे बड़े से मिरर पर मारना चाहता, मगर बैलेंस आउट होने की वजह से सनम का सर शीशे की बजाय पास बने हुए पिलर के किनारे पर दम की आवाज के साथ ही बेहद जोर से टकराया था। यह सारा अमल बस कुछ सेकंड में हुआ था। सनम का सर पूरी कुव्वत से पिलर के किनारे से टकराया था, जिसकी वजह से उसकी पेशानी का दायां हिस्सा बुरी तरह से फटा था और खून फवारे की तरह उसके सर से बहता हुआ पूरे चेहरे को लाल कर गया था। उसके साथ ही वो चकरा कर नीचे गिरती चली गई थी। रकीब का खुद का सर भी सामने मौजूद दीवार पर बुरी जोर से लगा था और सर से खून भी बहने लगा था। कुछ देर तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, मगर वो खुद को संभालकर जल्दी से पलटता हुआ सनम की तरफ बढ़ा था। लेकिन सामने ही खून में नहाती हुई सनम को नीचे फर्श पर पड़े देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और फिर जैसे उसके सर पर कोई दीवानगी सवार हो गई थी, वो चील की तरह बेराम पर झपटा था। यू बास्टर्ड, मेरी सनम को मारा तूने, मेरी सनम को जान से मार डालूंगा तुझे, मेरी सनम को छुआ तूने, उसे चोट पहुंचाई, उसे थप्पड़ मारे, आई विल किल यू। वो गुस्से से चिल्लाता हुआ वो बेराम को जुनूनी अंदाज में बुरी तरह से पीटने लगा था, जबकि बेराम जो कि 2 साल मेंटल जाइलम में गुजार कर आया था, पहले के मुकाबले खासा कमजोर हो गया था। रकीम के दो हैकर वजूद के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया था। गुस्से से जनूनी हुआ रकीब उसे बुरी तरह से पीट रहा था और पुरजोर अंदाज में मुदावत करने के बावजूद भी बेराम खुद को रकीब की जुनूनी गिरफ्त से आजाद नहीं कर पा रहा था। सनम के खून को देखकर रकीब काफी पागल हो गया था। उसने बेराम को अपनी लातू और मुकुट की जद पर रख लिया था। क्यों मारा तुमने मेरी सिंड्रेला को? बोल, कैसे हाथ उठाया उस पर तूने? पागल है ना तू? पागल है ना? नफसियाती। लेकिन सुन, तुझसे बड़ा पागल मैं हूँ, तुझसे बड़ा नफसियाती हूँ मैं। आज बताऊंगा तुझे कि असल पागलपन होता क्या है। बहुत शौक हो रहा है ना तुझे मेरी सनम को सजाने का? अब तेरा मेकअप मैं करूंगा। चीख चीखा बोलते हुए रकीब ने बेराम के बाल पकड़कर उसका सर चेहरे के रूह से उसी की तरफ सामने दीवार पर दे मारा था, जैसे कुछ देर पहले बेराम ने रकीब का सर दीवार पर मारा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, न जाने कितनी बार रकीब ने यही अमल दोहराया था। बेराम जो कि पहले उसके हाथों में मार खाकर आधा मर रहा हुआ था, आखिरकार उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी और वह रकीब के हाथों के जुनूनी गिर से फिसलता हुआ नीचे गिरता चला गया। उसका लहू लहान वजूद और बंद होती हुई आंखें बता रही थी कि वो बेहोश हो चुका है। तभी घबराए हुए रोहान रकीब की दहाड़ती हुई आवाज सुनकर तेजी से अंदर आया था। वो तो यहाँ पर रकीब को देखने आया था, जो कितनी देर से वॉशरूम से वापस नहीं आया था, मगर रकीब की लेडीज वॉशरूम से आती चंगारती आवाज सुनकर वह हैरान रह गया था और दौड़ते कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। मगर दरवाजा खोलते सामने पिलर के पास सनम का खून आलूदा वजूद देखकर वो जैसे साकत रह गया था, जबकि सामने ही रकीब फर्श पर बेहोश पड़े बेराम के सीने पर बैठा उसके मुंह पर मसलसल पंच मारा था। उसके सर पर जैसे खून सवार हो गया था। वो उस नफसियाती शख्स को जान से मार डालता अगर रूहान तेजी से आगे बढ़कर रकीब को खींचकर बेराम से अलग ना करता। ये तू क्या कर रहा है रकीब? मर जाएगा ये, छोड़ उसे। रोहान रकीब को बामुश्किल खींचकर बेराम से अलग किया था, मगर वो रूहान की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाकर दोबारा से बेराम की तरफ लपकने लगा था। छोड़ मुझे रोनी, मैं मार डालूंगा उसे। इसने मेरी सनम को मारा है, देख उसने क्या हाल किया है मेरी सिंड्रेला का, कितनी चोट पहुंचाई है उसे, मैं उसकी जान ले लूंगा, छोड़ मुझे। रकीब अपना हाथ छुड़ाकर बेराम के पास पहुंचा, उसके बेहोश वजूद को
गिरबान से थाम कर उठाया था। रकीब छोड़ो उसे, सनम को देख उन्हें बहुत ही चोट आई है, हमें उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, छोड़ दे उसको। रोहान रकीब के इस कदर गुस्से और जुनून को देखकर शशतर रह गया था। रकीम का ये अंदाज उसने आज पहली बार देखा था। वो तो बहुत कूल किस्म का बंदा था, फिर आज रकीम के सर पर ये कैसा जुनून, ये कैसी दीवानगी सवार थी। यकीनन ये लड़की उसके भाई के लिए बेहद खास थी। रोहान एक नजर सनम के सागत पड़े वजूद पर डालती, वाकई ये लड़की इस काबिल थी कि उसके लिए दीवाना हुआ जाए। रोहान ने सोचते हुए रकीम के चलते हुए हाथों को पकड़ कर उसका रुख सनम की तरफ किया था। रकीम देख, सनम का खून बहुत ही बह रहा है यार, देख। सनम के सर से खून तेजी से बह रहा था, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना अशद जरूरी था। तभी उसने दीवाने होते हुए रकीम को झंझोकर सनम की तरफ मतवजो किया था, और सनम की हालत का सुनकर रकीम जैसे होश चूम कर होश में आया था। वो बेराम को छोड़कर तेजी से सनम के पास पहुंचा। उसका सर अपनी गोद में रखते हुए उसने सनम के खून उलूदा चेहरे को अपनी जेब से रुमाल निकालकर एहतियात से साफ किया था। सनम मेरी जान, होश में आए प्लीज, आंखें खोले सनम। रोनी मेरी सिंड्रेला आंखें क्यों नहीं खोल रही, उसे होश ही नहीं आ रहा। रकी की आंखों से शदीद जब्त के बाद भी आंसू बह निकले थे। रकीम ये ऐसे होश में नहीं आएगी मेरे भाई, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद अंदाजा होगा कि उन्हें कब होश आएगा। उनके सर पर शदीद चोट आई है, उन्हें होश आ भी गया तो तकलीफ की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, प्लीज संभालो खुद को, हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द। रूहान ने झुककर रकीम की आंखें साफ करते हुए कहा था। उसकी गोद में सर रख के बेहोश पड़ी सनम को एक नजर देखा था। रकीम की तरह उसका दिल भी सनम को इस हाथ में देखकर बुरी तरह से तड़प उठा था। कितनी बुरी हालत में थी वो हुरून जैसी हुस्न वाली लड़की। रूहान की बात सुनकर रकीम ने किसी मता हयात की तरह सनम को अपनी बाहों में समेटकर उसकी पेशानी को चूमा था, जबकि रूहान ने तेजी से इन दोनों की तरफ से अपनी निगाहें चुराए थे। रकी, मैं कार पिछले गेट पर लाकर तुझे कॉल करता हूँ, सनम को लेकर पिछली तरफ से बाहर निकलना, हाल मेहमानों से बड़ा हुआ है, किसी की भी नजर तुम लोगों पर ना पड़े वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। रूहान उससे ज्यादा सनम और रकीम को एक साथ इस तरह नहीं देख पाया था, इसलिए रकीम को हटा देता बाहर निकलने लगा था कि दरवाजे के पास पड़े ब्लैक कलर के क्लच पर उसकी नजर पड़ी। यकीनन ये सनम का क्लच था जिसे झुककर रूहान ने उठाया था। उस क्लच के अंदर भी शायद कुछ था, क्योंकि क्लच थोड़ा सा भारी हो रहा था। रूहान ने क्लच की चेन खोली, अंदर सनम का फोन मौजूद था, जिसके लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर पर उसकी बहुत ही प्यारी सी पिक लगी हुई थी। उसकी पिक देखकर दोबारा रूहान का दिल इस परी के लिए मचलता हुआ। उससे पहले ही वह फोन अंदर रखते हुए क्लच पास बैठे हुए रकीम को पकड़ा चुका था। ये सनम का है, उसके अंदर उनका फोन भी मौजूद है, दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। रूहान बोलता हुआ तेजी से बाहर निकला था। उसे अपने दिल को भी अब भी समझाना था, बहुत समझाना था कि सनम उसके भाई की मोहब्बत है, जिसे वो दीवानों की तरह चाहता था। रूहान शाह का सनम पर कोई भी हक नहीं था, इसलिए उसे अपनी नजर और अपना दिल दोनों पर साथ पहरा बिठाना था। यही उसके भाई के लिए बेहतर था। ये रूहान शाह की बेबसी और किस्मत की सितम ज़रबी नहीं तो और क्या थी कि उसे इस पूरी दुनिया में जिस लड़की से मोहब्बत हुई तो वो कोई और नहीं, उसका सगे भाई रकीम शाह की मोहब्बत है, जिसे रकीम दीवानगी की हद तक चाहता था। अभी सनम के लिए उसका जुनून खुद अपनी आंखों से देख चुका था। जिस परी को रूहान शाह का दिल सबसे ज्यादा मानने को तैयार था, उसकी कुछ भी नहीं बांट सकते थे। उसके दिल के संस्थान पर जो लड़की पूरे तमतराक के साथ बैठी हुकूमत कर थे, रूहान शाह का उसकी परछाई तक पर हक नहीं रहता था। ये सब सोचता वो अपनी कार को ये वे पिछले गेट की तरफ बढ़ा था। फिर अपना फोन उठाकर उसने रकीब को कॉल की थी, जबकि तेज से बजते हुए फोन की बेल पर सनम के चेहरे को दीवानावार तकता हुआ रकीम होश में आता। उसने जल्दी से पैन की पॉकेट से फोन निकालकर कॉल पे की थी। रूहान का फोन था, वो बाहर कार में दोनों का इंतजार कर रहा था। रकीम ने रूहान का पैगाम मिलते ही कार डिस्कनेक्ट करके फोन पॉकेट में रखा और नहायत ही नरमी और एहतियात से अपनी गोद में लेटी सनम को बाहों में उठाकर बाहर निकल गया। मैरिज हॉल के बैक साइड बने हुए वॉशरूम के सामने हॉल का दूसरा गेट था, जिससे रकीम सनम को लिए बाहर चलाया था। सामने रूहान का कार में बैठा गेट की तरफ देख रहा था। कम आउट रोनी एंड ओपन द डोर, रकीम ने पास आते रूहान से कहा था, जिसने बाहर आकर तेजी से पिछला दरवाजा खोला था और रकीम ने संभाल कर सनम को अंदर सी पर लटाया। फिर दूसरी तरफ से आकर सनम के पास बैठते हुए उसने दोबारा सनम का सर अपनी गोद में रखा लिया और फिर से अपने सुनेला को देखने लगा। कुछ देर पहले तो ये चेहरा पूरी आबोताब से चमकता हुआ जैसे कोई चांद का टुकड़ा लग रहा था, मगर अब वही चेहरा खौफ और तकलीफ की शिद्दत से जर्द हो रहा था। शायद उसे रकीम की ही नजर आ गई थी। वो थी भी तो इतनी खूबसूरत, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। डॉल नहीं, नहीं, वो साइको भी उस सनम को डॉल कह रहा था। वो तो उसकी सिंड्रेला ही ठीक थे। सनम की सिंड्रेला, उसकी जिंदगी। सनम का जख्म काफी गहरा था। उसके सांस से निकलता हुआ खून फिर से उसके चेहरे को तेजी से तार करने लगा था, जिस पर रकीम एक बार फिर से बदहवास हो गया था। रोनी, हॉस्पिटल कितनी दूर है, देख खून रुक ही नहीं रहा, प्लीज तू स्पीड तेज करना।
परेशानी रकीम की आवाज से छलक रही थी। जहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पारी मेरे दोस्त का प्राइवेट हॉस्पिटल है, हम वहीं पर जा रहे हैं। रूहान ने मुख्तसर जवाब दिया, ओके तो प्लीज तब तक अपना रुमाल दे, मेरा रुमाल खराब हो गया है, हॉस्पिटल पहुंचने तक बहुत ही खून ज़ाया हो जाएगा, तब तक मैं सनम के जहाँ पर रुमाल बांध देता हूँ। रकीम जल्दी से बोला था। रूहान ने गहरी सांस भरते अपना रुमाल रकीम को थमा देता, मगर पीछे देखने से इज्तनाब भी किया था। रकीम ने रुमाल पट्टी की तरह फोल्ड करके सनम के माथे पर कस कर बांध दिया था ताकि खून रुक जाए। रकीम ने सनम के दिलकश खून उलझा नकूश को अपने पुराने रुमाल से साफ किया। उसके सहाराना चेहरे को देखने लगा था, जो जिस रात वो उसके होश में रहते हुए नहीं कर सकता था, वो बेहोशी में कर रहा था। वो अपनी गोद में सर रख के लेटी सिंड्रेला को तकता सब कुछ बुलाए अपनी दीद की प्यास बुझाने में गुम था कि तभी झटके से कार रुकने पर चौंक गया। हॉस्पिटल आ गया था। रूहान ने जल्दी से बाहर निकल कर रकीम की साइड का दरवाजा खोला था, जिससे रकीम एहतियात से सनम को उठाए बाहर आया था। उसके लंबे खूबसूरत बाल रकीम के बाजू होते हुए नीचे तक लटक रहे थे। बेतरतीब वजूद उसके पनाहों में जैसे बिखर पड़ा था। वो रूहान ने लब बीच कर नजरों का जाविया बदलते हुए रकीम को गेर पर रुककर फौरन अंदर से स्ट्रेचर मंगवाया था। स्ट्रेचर आते ही रकीम ने आस्ते से सनम को उस पर लटाया, उसके गले में पड़े हुए दुपट्टे को पूरा खोलकर उसके वजूद को ढक दिया और फिर दोनों भाई उसे लिए तेजी से अंदर बढ़ गए थे। केस क्योंकि दोस्त की फैमिली का था, इसलिए रूहान के फ्रेंड्स में पूरा हॉस्पिटल अलर्ट हो गया था। रूहान की वजह से पुलिस का कोई भी बखेरा नहीं फैला था और सनम को एडमिट कर लिया गया। कुछ देर पहले नर्स सनम को चेंज करवाकर उसका ड्रेस और ज्वेलरी भी रकीम को थमा गए थे, जिसे रकीम ने गठरी की तरह बेच कर अपने सीने से लगा लिया था। वो सनम की खुशबू को अपने सांसों में उतारने लगा था। सनम का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। रूहान खुद को भी अंदर वार्ड में डॉक्टर के साथ मौजूद था, जबकि रकीम किसी मताहयात की तरह उसके कपड़ों को अपने सीने से लगाए कुछ देर पहले का मंजर याद करा था। अगर आज वो वक्त पर ना पहुंचता तो वो साइको शख्स उसके सनम का क्या हश्र करता। सोते हुए रकीम की रूह काम उठ गई थी। अब उन कपड़ों को एक साइड पर बेंच पर रखता हुआ खुद बेचैनी से उठ खड़ा हुआ था और फिर इधर से उधर टहलते हुए उसने अपना फोन निकाला और फहीम को कॉल करके सारी सूरत बताए थे। साथ ही आयशा को भी इस बारे में बताने के लिए कह दिया था। फिर आधे घंटे के अंदर हालिब, आदि, फहीम तीनों ने उसके पास हॉस्पिटल मौजूद है। फहीम भी हालिब और आदि को कॉल करके अपने साथ ही हॉस्पिटल आया था। इस दौरान रकीम के सर की बैंडेज भी रूहान ने काट दी थी और घर कॉल करके मम्मा डैड को भी अपने एक कॉमन फ्रेंड के एक्सीडेंट के बारे में बताते हुए रात अपने और रकीम के ना आने का भी कह दिया था, क्योंकि सनम को फिलहाल होश नहीं आया था। सुबह से पहले उसके होश आने के चांसेस भी नहीं थे, इसलिए आज रात उनको यहीं पर रुकना था। फहीम, वो साइको, पुलिस के हाथ चलने से पहले मुझे तेरे फ्लैट के टॉर्चर रूम में चाहिए। रकीम के साथ ठहरी हुई वापस फहीम ने चौंका उसके सूरत पड़ते हुए चेहरे को देखा था, जिसकी आंखें जब से अंगारू जैसे दहक रही थी। मगर रकीम, आदि ने उसको रोकना चाहा, मगर रकीम ने गर्दन मोड़कर उसे जिन नजरों से देखा था, इन निगाहों ने आदि के लबों पर कफर डाल दिया था। जबकि हालिब ने भी आदि के इशारे से चुप रहने को कहा था। फहीम, कल सुबह मैं उसे तेरे फ्लैट पर मुलाकात करना चाहता हूँ। रकीम ने दोबारा से फहीम को हटा देती, जो कि इस बार में सह लाता हुआ अपने फोन पर कोई नंबर डायल करता हुआ एक साइड पर चला गया था।